course. So it is very necessary to understand the concepts in second unit so that you will be able to better appreciate unit third and fourth. So it needs your attention. At the same time, it is very basic. It is not difficult, so that you can find it. You will not have any difficulty in understanding the concept. And we will do some practice problem in this unit as well. In first unit, there was not much practice problems. We did 4 or 5 numerical problems. And in this unit, we will do a lot of problems, a lot of practice problems. So with this, let us start what we are going to cover in this unit. Although we have discussed this in previous class. So it is just a list of topics we are going to cover in this unit. So here we will talk about what is the difference between digital and analog circuits, then different kind of number systems and their conversion, like binary, decimal, octal, hexadecimal, these kind of different number systems we will learn, and how to convert number from decimal to binary, binary to decimal, and then octal to decimal, then hexadecimal to binary. All into conversion we will learn, and we will do practice problems for that. And then we will go to basic operations in digital electronics, that are and, nor, and not, and, or, and not. These are 3 basic operations in digital electronics. So these operations we will learn the gates and its fundamentals, and then we will try to realize it using diodes and transistors. And then we will discuss few more properties of these gates. Then we will develop fundamentals of Boolean algebra. You have learned somewhere linear algebra in previous courses. So this is a similar kind of algebra. It has some set of laws. Then we will go to the Boolean laws, and then we will understand there are some theorems. And then we try to simplify digital logic circuits using Boolean algebra, and then we'll learn a few techniques to simplify it. So as of now, I'm sure you have heard before binary numbers, decimal numbers, and these and or not gate operations and all. But there are few things which are advanced. There are few things which connect you from previous study. So when we are doing it, we will do it from scratch. So if we don't remember things from previous classes, it's okay. It doesn't make difficult for you to understand. So we will do it from very scratch, and we do it very properly. So this unit is very fundamental. So I expect your proper attention to this. So with this content, what we are going to cover, let us look at it. So very first thing, we need to understand what is the difference between digital circuits and analog circuits. So in previous class, we discussed, at the same time, if you have any problem in hearing my voice, if it is slow, if it is discontinuous, please let me know so that I can work on it. So, so we were talking about analog and digital circuits. इसमें difference क्या होता है और ये circuit कैसे एक दूसरे से अलग-अलग. तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात किया. जब हम लोग सर्किट का बात करते हैं तो उसके पहले हम लोग एक बात करते हैं कि सिग्नल्स. व्हाट वी डू एक्चुअली, जो इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वी ट्रांसफर इट यूजिंग सिग्नल्स. तो सिग्नल 2 तरह के हो सकते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल. एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर क्या होता है? तो जो यहाँ पे ये पिक्चर है, यहाँ पे एक ग्राफ जैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं डिजिटल एनालॉग. So you see टाइम के साथ साथ ये कैसे वेरी कर रहा है. So on this x-axis, this is time. On y-axis, it shows some amplitude of that waves. So here if you see, this is analog signal. This is it seems continuous and can take any values. Here if you see digital, this is not continuous. This is a discrete set of signal. Here sometimes it is 0, sometimes it is 1. And there is no intermediate state between that, and it doesn't take any other states other than 0 or 1. So this is the difference between this signal.
So one we can say continuous, one we can say discrete. So this is basic difference between digital and analog signals. And when we are talking about digital analog signals, so at the same time we need to understand what are the devices we use. What are digital devices? What are analog devices? First we understand signal, then we are talking about devices. So if you see left side of this slide, you will find there are a list of some, there is a picture of some devices, and it says one are analog devices, there are digital devices. So first we learn what are digital signals, what are analog signals, then we are looking at devices. So for devices, we have to have same kind of signals as well. So if we are operating a digital device, then we have to give signal in that sense. Means we can't give analog signal to digital device. तो डिजिटल डिवाइस को कुछ सिग्नल देने के लिए हमको सिग्नल को भी डिजिटल होना चाहिए. जो इनपुट है मींस व्हेन वी आर गिविंग इनपुट टू डिवाइस, जितना भी ये डिवाइसेस है इनको सबको कहीं पे इनपुट चाहिए. जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं, अगर एनालॉग डिवाइस है तो हम उसको एनालॉग सिग्नल देंगे, अगर वो डिजिटल डिवाइस है तो हम उसको डिजिटल सिग्नल देंगे. And at the same time, when you look at the output of these devices, that is also signal, that is also a digital device output उसका digital होगा, और जो एनालॉग डिवाइस है उसका आउटपुट एनालॉग. तो कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि डिजिटल सिग्नल को हम जैसे हम अपना कुछ कोई एम्पलीफायर है जो तुम्हारा साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है. सो बेसिकली अगर हम लोग एम्पलीफायर में इनपुट में सिग्नल देंगे, आउटपुट में हम सिग्नल देंगे, तो एट लास्ट वी आर ट्राइंग टू लिसन इट कि ये एम्पलीफाई हुआ कि नहीं हुआ. तो जो सिग्नल हम सुन सकते हैं वही सिग्नल हमको आउटपुट में चाहिए. बट जो कन्वर्जन डिवाइसेस है, तो समटाइम वी नीड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, समटाइम वी नीड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल टू हैव इट to be it more accessible to us to better understand this. तो इसके लिए ये कुछ कन्वर्टर सिग्नल भी होते हैं जिससे हम डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं. एनालॉग डिजिटल सिग्नल में डिफरेंसेस का जैसे हमने बात किया, तो ये डिस्क्रीट सेट होता है, डिसकंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, और इसके कुछ स्टेजेस है. जैसे हमने बोला जो डिजिटल सिग्नल होता है वो 0 1 ऐसे बाइनरी नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ऑन ऑफ या हाई लो ऐसे स्टेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है. तो जब हम एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स को समझ रहे हैं तो उसके पहले हम लोगों ने ये समझा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं. फिर कुछ डिवाइसेस हमने देखी, किसको हम लोग एनालॉग डिवाइसेस कहते हैं, किसको हम लोग डिजिटल डिवाइसेस कहते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्किट्स. सर्किट में क्या डिफरेंस है. अभी तक भी हम लोग जो सर्किट पढ़ रहे थे, जो कुछ बना रहे थे, इसमें क्या ऐसा करते हैं कि इस तरह से चेंज हो जाता है. जैसे हम लोगों ने सीआरओ यूज किया तो वी गेव ए डायरेक्ट सिग्नल एंड वी सॉ इट एंड विजुअलाइज ऑन द डिस्प्ले. तो ये पूरा एक एनालॉग सिस्टम जैसे था. डिस्प्ले डिवाइस, उसमें हम लोगों ने कुछ सिग्नल को मॉडिफाई नहीं किया, कुछ डिजिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ा, एंड वी डिड इट लाइक दैट. So let us read what it says. We use devices to interact with each other. With each other, or there is a typing mistake. With each other, or with the world, whatever you want to say. थोड़ा सा कुछ उसको modify करें. So the transfer of information in day-to-day life. The information is conveyed using analog and digital signals. The information existing in the real world is analog in nature. So if you see एनालॉग सिग्नल देखो अगर, तो ये काफी रियलिस्टिक है. ऐसा हम लोग देखते हैं जैसे इफ यू हैव टू मेजर टेम्परेचर, सुबह से लेकर शाम तक टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, तो इट डजंट वेरी लाइक 3 डिग्री है, फिर 5 डिग्री है, फिर 4 डिग्री है, फिर 6 डिग्री है, या इट इज लाइक इट डजंट कन्वर्ट चेंजेस इनटू दैट एग्जैक्ट नंबर्स. तो जैसे 33 डिग्री से 34 डिग्री तक जाएगा, तो उसके बीच में जो इनफिनिट पॉसिबिलिटीज है, दे ऑल टेक्स ऑल दीज वैल्यूज. सो इसका मतलब ये नेचर जो है एनालॉग है, एक कंटिन्यूअस सिग्नल है. ऐसा नहीं होता है कि एकदम टेम्परेचर 17 डिग्री है फिर 18 डिग्री हो गया.
तो 17 से 18 के बीच में भी जो नंबर्स है, जो सारा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, वो रियल सिस्टम लेता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो रियलिटी है वो एनालॉग इन नेचर। So that is why it says the information existing in the real world is analog in nature. That is means having possibilities like colors, light intensity, sound, all this in infinite possibilities like a continuous system. So कभी-कभी हमको क्या करना पड़ता है, सिग्नल को डिजिटलाइज करना पड़ता है डिस्क्रीट सेट में बदलने के लिए। जैसे हम लोग के पास एक समझ लो थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर बताता है, उसका सेंसिटिविटी 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो क्या बताएगा, अभी 17 डिग्री है, फिर 18 डिग्री है, फिर 19 डिग्री, ऐसे बताएगा। इट विल टेक इट इन डिस्क्रीट नंबर, सो इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर अस। हमको देखने में आसानी रहता है। अगर 17.3689 ऐसे करके लिखे या बड़ा सा नंबर रहे, सो वी आर नॉट इनटू that much accuracy, so we don't need to go, we need to have that kind of signal. But if you plot with time, like if you plot an x-axis temperature time and y-axis temperature, then you will have a continuous graph. So reality is continuous, but for our convenience we change it into discrete. So that is what we do. We can take many example, real life example. We do a lot of times such kind of things to so that it becomes convenient for us. तो ऐसे होता है एक, तो इसलिए हम लोग डिजिटलाइज करते हैं। दूसरा चीज, जब इसको डिजिटलाइज करते हैं तो जो सिग्नल चेंज होता है, डिस्क्रीट सिग्नल, उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अब उसको प्रोसेस करने के लिए, जैसे एनालॉग सिग्नल है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमको एनालॉग सर्किट चाहिए होगा। डिजिटल सिग्नल है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमको डिजिटल सर्किट चाहिए होगा। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्लाइड। हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि सिग्नल 2 तरह का होता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, और फिर डिवाइसेस भी 2 तरह की होती हैं, एनालॉग डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस। इनके लिए हमको इनपुट में भी उसी तरह का सिग्नल चाहिए और आउटपुट में भी उसी तरह का सिग्नल देते हैं ये। और जब हमको कन्वर्ट करने का जरूरत होता है, तो देयर आर सम डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। और इन चीजों की प्रोसेसिंग के लिए हमको 2 अलग अलग तरह के सर्किट्स चाहिए होते हैं। एक को हम लोग एनालॉग सर्किट बोलते हैं, एक को हम लोग डिजिटल सर्किट बोलते हैं। सो आई थिंक this thing is very clear to you. Now let us go to the next slide and let us see कि एनालॉग सर्किट कैसे दिखते हैं, डिजिटल सर्किट कैसे दिखते हैं। सो ये जो है, इस स्लाइड में हम 2 सर्किट देख रहे हैं। तो ये 2 सर्किट, जैसे पहला वाला जो सर्किट देखिए, इट इज अ वेरी कॉमन सर्किट। और ये बेसिकली क्या है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। जो ये ट्रायंगुलर सिंबल बना है, दिस इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर तुम लोगों ने पहले पढ़ा है, वेरी गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ये कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकता है। और एम्पलीफायर का मतलब तो तुम लोग समझते हो, एम्पलीफायर मतलब किसी सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं, तो वी यूज एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिग्नल देते हैं, वी इन मतलब वोल्टेज जो भी दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल, और यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज एन टिपिकल एग्जांपल ऑफ एनालॉग सर्किट। और जनरली हम लोगों ने जो सर्किट अभी देखे पड़े हैं, वो सारे एनालॉग सर्किट है। इसमें हम लोग कुछ डिस्क्रीट तरह का जैसा करने का जरूरत नहीं है। कुछ हम दे रहे हैं, ये इसको एम्पलीफाई करेगा, तो वी कैन कैलकुलेट इट्स गेन, कितना एम्पलीफाई किया, और ज्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, वी कैन डू अ लॉट ऑफ। So this is a typical example of analog circuits. But if you see this one, I don't know if you have seen it before like this. Probably you have seen it since you have studied logic gates and simple logic, binary number and all in previous classes. But let's just see, there is a difference. इसमें डिफरेंस क्या है, देखो। अगर इस सर्किट को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है ये क्या सर्किट है, वी विल टेल एट दैट टाइम। But as of now, you see, these are logic gates. These are logic gates. ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये लॉजिक गेट का सिंबल है। इसके अंदर कुछ एक लॉजिक होता है, उसको हम
और ये इनपुट है, यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्मिनल्स है जहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो इसका एक लॉजिक है, हम लोग यहाँ पे इनपुट में बाइनरी नंबर, जो डिजिटल सर्किट होता है उसके इनपुट में हम लोग बाइनरी नंबर्स में ही दे सकते हैं, मतलब या तो 0 दे दो या तो 1 दे दो, 0 1। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, नहीं कि हम अभी 5 वोल्ट दे रहे हैं, 15 वोल्ट दे दिए, बढ़ा दिए 18 वोल्ट कर दिए या 4.5 वोल्ट कर दिए। दिस इज नॉट द थिंग। हियर यू जस्ट गिव इट 0 और 1, मतलब या तो ऑन है या तो ऑफ है, या तो हाई है या लो है। There are only two states. So here either you can give 0 or you can give 1. Same time, same thing here. And then there is logic कि यहाँ पे कुछ दे रहे हैं हम लोग, तो इधर क्या आएगा उसका एक लॉजिक है। उस लॉजिक को जब हम समझ लेंगे then you will be able to know कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमको सिर्फ ऑन ऑफ यहाँ भी 2 ही मिलेगा, तो आउटपुट में वहाँ पे भी 0 1 मिलेगा। सो ये जो डिजिटल लॉजिक है, इससे कैसे ये सर्किट और ये सर्किट कैसे डिफरेंट है, आई थिंक यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। पहले तो चीज की इसका इनपुट देखो, दोनों का डिफरेंस। इनपुट जब हम दे रहे हैं तो एक अलग तरह का इनपुट है इसका। इनपुट में हम सिर्फ एक डिजिटल इनपुट दे सकते हैं, मीन्स इट कैन हैव 0 और 1। लेकिन जब एनालॉग सिग्नल सर्किट है, वहां पे हमको ऐसा कुछ कंडीशन नहीं, और आउटपुट में भी एनालॉग में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। बट अगर डिजिटल सर्किट देखो तो इसके आउटपुट में 0 1 0 या 1 2 ही स्टेट है, उन्हीं में से मिलेगा। सो कुछ सेंस में थोड़ा सिंपल तो लगेगा, कुछ सेंस में थोड़ा सा अलग लगेगा, बट ये मतलब डिजिटल और एनालॉग सर्किट का डिफरेंस समझने के लिए the best thing you can, if you understand this, if you look at these pictures both, then you understand what is the basic difference. So एक लॉजिक होता है डिजिटल सर्किट्स का, और उसी लॉजिक के थ्रू हम लोग इसमें सब कुछ करते हैं। एक बहुत सिंपल डेली लाइफ का अगर एग्जांपल लो तो यू कैन सी स्ट्रीट में जो हम लोग सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल यूज करते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब कुछ होता है। इधर वाला जा रहा है, अभी उधर वाला जा रहा है, उसको बंद किया, इसको चालू किया। ये सब अगर तुम सोचो वहां पे ऐसे एक चौराहे पे 4 तरफ लोगों को खड़ा किया जाए और उनको बोला जाए ये लाइट जलाओ, वो लाइट बुझाओ, या जैसे पहले हम लोग एक देखते थे कि जब ट्रैफिक लाइट नहीं होता था तो ट्रैफिक पुलिस होता था, तो ट्रैफिक पुलिस खड़ा रह के बताता है अभी इधर जाओ, उधर रुको, इधर जाओ, ऐसे करता है। सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। कंफ्यूजन होता है, कभी कुछ इधर भी चल गया, उधर भी चल गया, तो लॉजिक उसका कभी प्रॉब्लम में आ सकता है। बट उसको जब हम लोग एक डिजिटल सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं तो इट मेक्स एन लॉजिक। उसको हम पहले से समझा दिए कि जब इधर जाएगा तो इधर नहीं जा सकता। सो व्हेन इट विल गिव ग्रीन लाइट टू वन साइड, इट विल गिव ऑल अदर साइड रेड लाइट। तो ये जो है ये बेसिकली एक डिजिटल सर्किट होता है, एंड देन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। कुछ ऐसा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। इट अपने टाइम के साथ, टाइमर उसमें लगता है, 30 सेकेंड के लिए इधर खोला, 1 मिनट के लिए उधर खोला, तो जिधर जैसे करना है वो ऐसा लॉजिक तुमने सेट कर दिया, एंड इट वर्क्स थ्रू आउट द सिटी। एक सिंपल नेटवर्क और पूरे शहर में वो काम करता है, एक ही चौराहे पे नहीं। उसको बाकी बहुत सारा लॉजिक की इस चौराहे से ट्रैफिक पहुंचेगा तो वहां पे भीड़ लगेगा। जब यहाँ पे हम लोग ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं तो इसका मतलब है आगे 5 मिनट 10 मिनट के बाद नेक्स्ट चौराहे पे हमको उस लाइन में ग्रीन सिग्नल देना है। तो ऑल दिस इज ए लॉजिक। आई थिंक ये एग्जांपल अगर थोड़ा सा समझने का कोशिश करोगे तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि डिजिटल लॉजिक और डिजिटल सर्किट्स के कितने बेनिफिट है, कितना सिंपल हो जाती है चीजें। सिमिलरली इफ यू सी ट्रेन स्टेशन पे कितनी सारी ट्रेन आती है, वहां पे भी जो होता है इसका भी एक लॉजिक होता है। तो डिजिटल लॉजिक, डिजिटल सर्किट हम लोग को क्यों चाहिए होता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो अगर देखो तो लाइट सिग्नल कुछ कर नहीं रहा है, जस्ट ऑन एंड ऑफ। रेड लाइट तुम्हारा ऑन है, ऑफ है, ग्रीन लाइट तुम्हारा ऑन है, ऑफ है, 2 ही स्टेज है। सो दैट इज हाउ यू मेक थिंग्स वेरी कन्वीनियंट एंड यू मेक एन सिस्टम। तो एक लॉजिक बनाते हैं उसका। So that is why digital circuits are important, and it plays very important role, and that is how they are different. लेकिन जो काम डिजिटल सर्किट कर सकते हैं वो एनालॉग के लिए नहीं है, जो एनालॉग करेगा वो डिजिटल के लिए नहीं है।
और इसका इनपुट आउटपुट भी उसी तरह का होता है। अगर डिजिटल सर्किट है तो उसका इनपुट भी बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी में देंगे, आउटपुट भी बाइनरी में आएगा। और अगर एनालॉग है तो उसमें जो है कंटीन्यूअस सिग्नल देते हैं, एनालॉग सिग्नल, और आउटपुट में भी एनालॉग सिग्नल मिलता है। तो आई थिंक एक अच्छा क्लियरिटी आया होगा कि डिजिटल और एनालॉग सर्किट क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है, और इनकी हमको जरूरत क्या है। अगर ट्रैफिक सिग्नल हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, सो दिस इज एन वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये सब लॉजिक काम करता है। वी विल अंडरस्टैंड एवरी लॉजिक एंड वी विल ट्राई टू go into more detail, but it is just an introduction. So now let us see a table where I have tried to put the differences. Basically analog circuit और digital circuit में difference क्या होता है, ये कभी जैसे हम लोग के सिलेबस में इस टॉपिक को ऐसे मेंशन किया गया है, so we can have some questions on that, and at the same time if you properly understand कि क्या difference है, तो you don't need to mug up anything. Now, let us read these points one by one. One is analog circuits can only process analog and continuous amplitude signal, whereas digital circuits can only process digital or discrete amplitude signal. You understand this? ये हम लोग पहले ही अभी बात की है, but ये point ऐसे लिखे जाएंगे जब लिखने होंगे। फिर क्या बोल रहे हैं कि एनालॉग सर्किट क्या होते हैं? एनालॉग सर्किट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव्स, whereas digital circuits are made up from square waves where we have 0 or 1. So if you just go to first slide to see that, ये देखो digital है, ये analog है, तो ये जो है ये भी एक wave है। और if you have learned Fourier transform, Fourier series तुम लोगों ने कहीं पहले पढ़ा होगा, तो Fourier series यही बताता है कि हम किसी भी वेव को कोई भी कंटिन्यूअस वेव है उसको हम लोग साइन और कोसाइन के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट इन साइन वेव, कोसाइन वेव। हम लोग लेटर ऑन शायद कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इस पे, बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी व्हेन ये कहता है कि एनालॉग सिग्नल जो है वो कॉम्बिनेशन है साइन वेव का, सो इट मींस कि जो भी अगर वो थोड़ा भी साइन वेव जैसा नहीं भी वेव है, तभी भी हम उसको साइन वेव, कॉस वेव, कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट। तो ऐसा होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल कैसा होता है, ये स्क्वायर वेव होता है, इसमें 0 1 होता है। तो ये हम लोगों ने तो देखा ही है। फिर एक पॉइंट बोला है, द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो इफ यू पुट लाइक अ साइन वेव देखे इसी सिग्नल का, तो हाफ साइकिल उसका पॉजिटिव रहता है, हाफ साइकिल नेगेटिव रहता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो 0 है तो वो होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है, नेगेटिव का इसमें कंसेप्ट नहीं होता है। देन next point, it stores the information in form of wave, and it stores information in form of binary form or bits. तो अभी क्या हुआ, जो एनालॉग सिग्नल्स है, जैसे हम लोग कुछ एनालॉग सिग्नल देख रहे हैं, उसका डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं सिग्नल कैसा दिख रहा है, तो वो वेव की फॉर्म में हम उसको ट्रेस करते हैं या स्टोर करते हैं। सिग्नल उसी तरह से उसको सेव करता है कि ऐसा सिग्नल है इसका। बट जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उसमें सारा डेटा स्टोर करने के लिए हमको सिर्फ बाइनरी नंबर चाहिए होता है। तो जैसे हम लोग का जो लैपटॉप है, मोबाइल है, दे आर बाइनरी डिजिटल डिवाइसेस। तो ये सारा कुछ डेटा जो भी हम इसको बोलते हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ इट इज एन साउंड वेव एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ए डिजिटल फॉर्म। लैपटॉप या जो कंप्यूटर है हमारा, वो और किसी सिग्नल को नहीं समझता, इट अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी इनपुट। So when we say something, it converts it to there is a mechanism to convert it into digital signal and then process it, और फिर जब तुम्हारे पास जाता है तो हम लोग उसको फिर से उसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे जो हम लोग माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं या कान में सुनने के लिए हेडफोन यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसमें वो मैकेनिज्म है उस डिजिटल सिग्नल को फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो उसको मिलता है उसको फिर से कन्वर्ट करता है। So that is how, so जो बाइनरी डेटा है वो बिट्स में स्टोर होता है, उसको बिट बोलते हैं, 0 और 1, 0 1, this is called bits.
तो हम लोग जैसे तुम लोगों को देखो कि हम लोग का कोई डिवाइस होता है, उसका कुछ मेमोरी होता है, इतना एमबी, इतना जीबी। तो एमबी मतलब मेगाबाइट्स, जीबी मतलब गीगाबाइट्स, टीबी मतलब टेराबाइट्स। तो बाइट्स और बिट्स, बिट क्या होता है, जो सिंगल बिट है इंफॉर्मेशन 0 1, उसको हम लोग बिट बोलते हैं। और जब 8 बिट का इंफॉर्मेशन होता है उसको बाइट बोलते हैं। वी विल गो इनटू मोर डिटेल, वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जस्ट नो कि बिट मतलब जो एक सिंगल डिजिट है उसका, उसको स्टोर करने के लिए बिट बोलते हैं। अब इसको कैसे स्टोर करते हैं ये सब भी हम लोग कोर्स में सीखेंगे। हमारा कोर्स इस सब सेंस में बहुत इंटरेस्टिंग है कि वी विल अंडरस्टैंड कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होता है, और कैसे डिवाइसेस में स्टोर करते हैं। तो हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो वी गो टू फंडामेंटल लॉजिक, कि उसका फंडामेंटल लॉजिक क्या है, इस तरह से हम लोग इसको समझ रहे हैं। सो व्हेन एवर कभी आगे इंडस्ट्री में भी कुछ काम करेगा कोई, तो तब भी ये बेसिक जो है ये इम्पोर्टेंट होता है कि समटाइम वी ऑफर सिमिलर कोर्सेज टू स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। So they many times they go into more detail of this microprocessor and also, but the basic logic जो हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से बात करते हैं, वो शायद हम लोग इसमें ज्यादा बेटर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन उसकी जो टेक्निकलिटीज है वो जो लोग उसका एडवांस कोर्सेज करते हैं वो पढ़ते हैं। So let us go to the fifth point. It says it can get signal from real world without conversion. तो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि जो रियल वर्ल्ड डेटा है वो ज्यादातर एनालॉग है। रियल वर्ल्ड इज एनालॉग। तो इसमें अगर तुमको सिग्नल लेना है तो तुम डायरेक्टली रियल वर्ल्ड से ले सकते हो, कुछ कन्वर्जन कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम जो डिजिटल सर्किट है उसमें तुमको सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिंस रियल वर्ल्ड इज एनालॉग इन नेचर, इट नीड्स टू कन्वर्ट एनालॉग इनटू डिजिटल सिग्नल। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, बट यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखने का, रखने का इसलिए कोशिश किया कि सो दैट जब हमको बाद में कभी लिखना हो कहीं पे, जैसे हम तुमको बोले कि डिजिटल एनालॉग सर्किट में 5 डिफरेंस लिखो, तो 5 डिफरेंस लिखने में तुमको handy रहे ये, और if you understand the concept तो you don't need to know, but we have to practice it। एग्जाम में कुछ भी लिखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। for that I'm making this material। Okay, then let us go to the sixth point। Its output can be directly connected to any real world component। सिमिलरली जैसे इनपुट के लिए बोला कि इनपुट हम लोग डायरेक्टली रियल वर्ल्ड से ले सकते हैं, ऐसे ही जो एनालॉग सिग्नल का आउटपुट होता है इसको भी हम लोग डायरेक्टली रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड इज एनालॉग। बट जो डिजिटल सर्किट है उसका जो आउटपुट होता है वो आउटपुट डिजिटल होता है, फिर उसको हमको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो पहले वो कन्वर्ट करके डिजिटल बना रहा है, देन जो हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम यूज कर रहे हैं वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, and then it again converts and do all the thing, and then when it get to you it again converts in the analog form so that you understand this, you can hear the sound। Okay, so now the last point from this slide: analog domain signals are susceptible to noise, and they are rather where when you see digital circuit they are more resistant to noise signal। तो ऐसा क्या है कि इसमें सिग्नल में नॉइज ज्यादा होता है एनालॉग में, और ज्यादा नॉइज होने का प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी है, whereas on the digital circuit you don't need to वरी मच अबाउट नॉइज। क्योंकि हम लोग अभी देखिए ना, अगर जैसे इसको देखो, पहला जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इफ यू शो दिस, थोड़ा सा भी अगर कुछ डिस्ट्रॉक्शन होगा तुम्हारे सर्किट में, कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे मान लो तुमने कुछ एक ये सर्किट बनाया है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग सर्किट थे, यहाँ पे कुछ ज्वाइंट है और वो ज्वाइंट मान लो थोड़ा सा लूज है, तो क्या होगा, वो सिग्नल को तुम्हारे डिस्टार्ट करेगा, वो आउटपुट में तुम्हारे डिस्ट्रक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये जो है सारा कुछ एज इट इज दिखा रहा है। बट यहाँ पे अगर क्या है तो हम लोग ऑन ऑफ हो सकते हैं। तो अगर तुम्हारा सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम होगा तो या तो ये बंद ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा 0 1 ऑन ऑफ है तो बीच में कुछ स्टेज होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नॉइज होने का चांस कम होता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 7 पॉइंट्स in very clarity।
So these are the points. Then let us have look at some other differences. So there are more 7 points we have. So there are 14 points we are talking about, and for any exam, if you have to write these differences, I think it will be very easy for you to practice and understand. So I'm trying to explain every single difference in a proper way. So let us see the first difference here in the slide. So its design is complex and needs various circuit components that need to be placed manually. एनालॉग सर्किट में ऐसा होता है कि बोला इसका डिजाइन थोड़ा सा मुश्किल होता है और हमको सारे कंपोनेंट्स अलग अलग से इसमें रखने पड़ते हैं. डिजिटल सर्किट में क्या होता है कि ये लॉजिक गेट यूज करते हैं और देयर इज मल्टीपल सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प इन डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट इजीली. बोले कि इसमें हम लोग सिर्फ लॉजिक गेट यूज करते हैं और कुछ यूज करना नहीं होता है. तो लॉजिक गेट को कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे अगर हमको कुछ डिजाइन करना होता है इट्स क्वाइट सिंपल. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, द एनालॉग सर्किट डज नॉट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी. डिजिटल सर्किट इंप्लीमेंटेशन इज मोर फ्लेक्सिबल देन एनालॉग. तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम लोग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में है जैसे कि हम कुछ भी लॉजिक चेंज कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इट इज सिंपल इन डिजिटल सर्किट्स. बट एनालॉग सर्किट में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं. तुमको पता है कि ये एम्पलीफायर बनाए हैं तो यहाँ पे हमको एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, उसको इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, यू कैन डू मच. बट एनालॉग जो डिजिटल सर्किट है उसमें हमको अगर लॉजिक पता है तो वी कैन सिंप्लीफाई द लॉजिक, we can have a flexible, मतलब ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है in that sense. फिर और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बोलता है they do not require any clock signal to process data, whereas digital circuit में they mostly rely on clock signal to synchronize with each other. तो एक टाइमिंग का चीज आ गया कि जैसे हम लोग एम्पलीफायर दिया लगाया है एनालॉग में, एम्पलीफाई कर रहा है. सो यहाँ पे टाइम वाइम का कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो तुमको क्लॉक देने का जरूरत नहीं है, इस समय इतना एम्पलीफाई करो, इसमें उतना करो, ऐसा कुछ नहीं होता है. बट जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उसमें एक क्लॉक होता है. जैसे हम लोगों ने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक बार ट्रैफिक सिग्नल्स का दिया, तो वहां पे तुम देखो हर एक टाइमर होता है, टाइमर के साथ चीजें चेंज होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिजिटल सर्किट रिलाई ऑन क्लॉक सिग्नल. तो वहां पे क्लॉक सिग्नल है जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक साइड में यहाँ पे 70 सेकेंड्स के लिए ट्रैफिक खोला गया है, तो 70 सेकेंड के बाद वो अपने आप को बाकी सिग्नल वैसे चेंज करेगा. सो इट इज लाइक व्हेन यू सी डिजिटल सर्किट्स मोस्ट ऑफ टाइम यू विल फाइंड ए क्लॉक एसोसिएटेड विद दैट. तो क्लॉक सिग्नल इसमें इंपॉर्टेंट होता है. हम लोग ये सब चीजों को बहुत डिटेल में आगे यूनिट्स में समझेंगे. हम लोग ऐसे सर्किट्स बनाएंगे और डिफरेंट टाइप के सर्किट्स का बात करेंगे. सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. बट इफ अगर अभी से समझते चलोगे तो वहां पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और अगर अभी यहाँ पे हम लोग अगर कुछ मिस करेंगे तो वहां पे फिर ऊपर से जाने लगेगा, तो फिर समझ नहीं आएगा. देन यू विल फील ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं. तो इंटरेस्टिंग तभी तक है जब तक हम एक कंटिन्यूएशन में उसको समझते रहे. कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कभी भी पूछ सकते हो, बीच क्लास में भी, बाद में भी. और आई एम अवेलेबल एनी टाइम यू आस्क एनीथिंग, आई विल ट्राई टू आंसर in my best capacity. फिर let us see the fourth point. The analog circuits can be passive and active circuits. हम लोगों ने पैसिव एक्टिव कंपोनेंट सीखा है फर्स्ट यूनिट में जब हम लोग सीख रहे थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो इंटीग्रेटेड सर्किट में हम लोगों ने बोला कुछ कंपोनेंट पैसिव होते हैं, कुछ कंपोनेंट एक्टिव होते हैं. पैसिव एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, and you have that slides with you, you can even look at if you don't remember what is passive active, but look, you should try to understand कि passive active क्या difference है. फिर बोल रहे हैं कि जबकि डिजिटल सर्किट में क्या होता है, they are only active circuit, they need any extra source of power, उनको कुछ पावर देना पड़ता है, वो एक्टिव सर्किट होता है, उसमें पैसिव कंपोनेंट्स डिजिटल में नहीं होते. So this is one thing. Now let us look at this fifth point. So the analog circuits is slower in processing and requires more power than digital, whereas digital circuits are faster in processing and require less power than analog circuits.
यहाँ पे हमने देखा दो ही स्टेट होता है, ऑन ऑफ। तो जनरली जो डिजिटल सर्किट होते हैं उनको बहुत पावर नहीं चाहिए होता है, बट एनालॉग सर्किट होते हैं उनको पावर चाहिए होता है, वो बहुत सारे काम और भी करते हैं, एम्प्लीफिकेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू आर डूइंग यू हैव टू एनालॉग सर्किट। तो एनालॉग सर्किट को पावर भी ज़्यादा चाहिए होता है, उसके प्रोसेसिंग में टाइम भी लगता है। तो ये भी एक चीज़ क्लियर है कि एनालॉग सर्किट स्लोअर होता है और पावर ज़्यादा चाहिए, जबकि डिजिटल सर्किट फास्टर होते हैं और उनको पावर भी कम चाहिए। Then next point, the analog circuits are less accurate and precise. Digital circuits are more accurate and precise. ये हम लोगों ने जब noise वाला point discuss किया, at that time if you remember कि noise नहीं होता है तो उसी वजह से इसमें accurate और precision भी ज़्यादा होता है, क्योंकि दो ही stage है on and off. So if you have a LED जो on है off है, so precision अपने आप बढ़ गया। अगर बहुत सारा इंटरमीडिएट स्टेट है तो वहाँ पे गलती होने का चांसेस है, एक्यूरेसी का कम हो सकता है, प्रिसिशन कम हो सकता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन एंड ऑल। सो लेट अस सी इफ वी गेट सम टाइम देन वी विल डिस्कस दिस पार्ट इवन some time कि प्रिसिशन with accuracy and precision and this how they are different and क्या माइनस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या डिफरेंस होता है, समटाइम वी विल टॉक अबाउट। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं। एंड देन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कैन कॉज ऑब्जर्वेशनल एरर। जैसे हम लोग कुछ नंबर देख रहे होते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जहाँ पे हम कुछ वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं आउटपुट में, और इसमें क्या होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। यू डू सम टाइम एक्सपेरिमेंट्स इन लैब, देखते हैं कि कुछ नंबर चाहिए और इधर उधर घटबड़ के नंबर आ रहा है, और कभी कभी क्या होता है हम उसको देखने में भी पढ़ने में भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल एरर उसको बोलते हैं। जब हम कुछ डेटा लेते हैं, उस डेटा लेने में अगर कुछ एरर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं ये ऑब्जर्वेशनल एरर। दो तरह का एरर भी होता है, दो तीन चीजें इसमें बहुत अच्छा आया है कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन, ये क्या है इसको समझने का कोशिश करना। मैं मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशनल एरर, तो ऐसे ही दो तरह का एरर भी होते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर और सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ऐसा होता है जिसको हम लोग कम नहीं कर सकते, जो होता ही है। मतलब जितना भी चीजें हम लोग देखते हैं, जितना भी सिग्नल हम लोग लेते हैं, जितना भी डेटा हमारे पास है, जब भी हम कोई नंबर रिपोर्ट करते हैं, दैट इज वाई रिपोर्टिंग एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग लैब करते हैं तो बोलते हैं ना हमेशा एरर कितना है ये बताना चाहिए, आना चाहिए। तो वहाँ पे उतना मायने नहीं रखता होगा, लेकिन ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट। तो एरर दो तरह का होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर होता है कि स्टैटिस्टिक, या वो एरर जो होता है जो मतलब होता ही है, जिसको हम कम नहीं कर पाते, तो उसको स्टैटिस्टिकल एरर बोलते हैं। वो डेटा का नेचर से एरर आता है। तो जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब हम लोग उसको देखने में, जब हम लोग नंबर लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो सकता है सर्किट में, सिग्नल में, इंस्ट्रूमेंट में, जिससे कि वो नंबर गलत आ जाए। हम लोग एम्प्लीफिकेशन का देख रहे हैं और एम्प्लीफिकेशन सही से नंबर उसमें हम लोग गलत नहीं करें, या हम लोग कुछ उसमें मिसमैच हो गया सिग्नल सर्किट बनाने में, तो गलत ऑब्जर्वेशन हो सकता है, उसमें ऑब्जर्वेशन एरर होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं होता। डिजिटल में जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, दो ही स्टेट होता है, ऑन एंड ऑफ और हाई लो, 0 1। तो उस वजह से इसमें एरर होने का चांसेस ना के बराबर होता है, इसमें एरर नहीं होता है। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा सर्किट में कुछ गड़बड़ी है, तो उसका लॉजिक हमको ठीक करना है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर उसमें नहीं होता है। फिर एक लास्ट पॉइंट है, ये बोले दे आर नॉट इफिशिएंट फॉर परफॉर्मिंग लॉजिक बेस्ड टास्क। जो एनालॉग सर्किट होते हैं उसमें अगर तुमको कुछ लॉजिक बेस्ड टास्क करना है तो उसके लिए अच्छे नहीं है, बट जो डिजिटल सर्किट होते हैं वो इसी तरह के काम के लिए होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सारा चीजें हम लोगों ने लगभग अलग अलग तरह से डिस्कस की थी जब हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया और ये बताया। फिर जो दो टेबल देखे हैं ये बेसिकली उसी पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो इफ यू लुक एट दीज पॉइंट्स सो यू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है। जो हम लोग वर्किंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाके इंट्रोड्यूस करके डिफरेंसेस पे आ गए, उसका बेनिफिट ये मिला कि हम लोग जब डिफरेंसेस समझ रहे थे एट दैट टाइम वी आइडेंटिफाइड कि ये काम भी कैसे करता है। तो विद दैट हम लोग ये टॉपिक जो पहला है
डिफरेंस मतलब एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट क्या होते हैं, एनालॉग डिजिटल सिग्नल किस तरह के होते हैं, एनालॉग डिजिटल डिवाइसेस किस तरह के होती है, और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अभी आगे चल के हम लोग क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो वी विल बी मोर इनटू डिजिटल सर्किट्स में हम लोग और ज्यादा डीपर जाएंगे। एनालॉग सर्किट्स हम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा समझा है, एंड मोस्टली वी विल लीव एनालॉग सर्किट्स हियर एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। अब डिजिटल सर्किट में हम लोगों ने एक बात किया कि इसमें बाइनरी नंबर में काम करता है, बिट में काम करता है, सो फॉर दैट वी नीड टू नो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। So in the next part of this discussion, we will be talking about